हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स टेक अप द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. जल्दी से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. एक ही शॉट में ये चैप्टर रिवाइज कर देते हैं. मोस्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल दिस एज ट्रांजिशन एलिमेंट. और एफ को हम बोलते हैं इनर transition element. So this is the second name for D and F block, right? Now अगर हम D की बात करते हैं तो D में हमारे पास 4 सीरीज है. हाउ मेनी सीरीज आर देयर? देयर आर 4 सीरीज. ओके, सो दिस, लेट्स चेक अ डिफरेंट कलर देख लेते हैं. तो जो फर्स्ट सीरीज है उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज. इट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30, right? That is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, right? Then you have got 4D series which starts from atomic number 39 and it's with atomic number 48. Okay, so the first member of this series is yttrium and the last member is cadmium. Then we talk about third series, that is 5D series. Now ये इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या होता है? फर्स्ट मेंबर हमारा जो है वो है लेंथेनम, right, with atomic number 57. After that there are 14 elements जो हमारे F ब्लॉक में रखे गए हैं. 14 elements, right? और उसके बाद वापस from hafnium, right, till mercury we have rest 9 elements. Okay, then fourth series आती है हमारी 60 series. The 60 again जैसे लेंथेनम है ऐसे ही एक्टीनियम इज देयर. एक्टीनियम के बाद हमारे पास फिर से 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, 5F सीरीज. और उसके बाद ड्रेफनियम से कॉपर्निशियम तक हमारे पास अगेन वी हैव गॉट 9 elements. Okay, now when we talk about 3D series, 4D series or 5D series or 6D series, तो इनका जो कन्फिगरेशन होता है वो हम देखते हैं कि कैसे इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? हम जब फिल कर रहे हैं इन सब सीरीज में तो हम कहाँ फिल कर रहे हैं? 3D मतलब 3D में फिल कर रहे हैं. 4D मीन्स वी आर फिलिंग इन 4D. लाइकवाइज 5D एंड 6D. सो एज द नेम सेज हम उन्हीं डी ऑर्बिटल्स में फिल कर रहे हैं. तो इनका कन्फिग्रेशन क्या होगा? जनरल कन्फिग्रेशन इज सेकेंड लास्ट शेल में फिल कर रहे हैं तो n-1d and the capacity of d is 10, so it is from 1 to 10. outermost shell में already 2 electrons होते हैं, but sometimes when this is half filled, d is half filled, right? So or to make it more stable, half filled or completely filled, electrons are taken from s. इसलिए it is from 1 to 2 electrons. Okay, so what is this? This is the general electronic configuration for d block elements. Okay, now when we see, अगर आप periodic table देखते हैं तो d block के लेफ्ट में आता है s block, right, और उसके राइट में आता है p block. So what we can say is s is positive and p is almost negative. So this is transition in between, right? So we can say that these d block elements are less electropositive than s block and they are more electropositive than p block. Is this clear? Now when we talk about the atomic radii, तो हम atomic radii क्या देखते हैं? That as we move इनका nuclear charge, effective nuclear charge is increasing. तो atomic radii क्या होगा? हमारा atomic radii पहले increase करेगा फिर decrease करेगा. Okay, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं फिर पॉइंट्स लेंगे. Okay, so first we talk about the characteristics of D block. So the first important characteristic is it has got variable oxidation state. D block में variable है लेकिन most common is +3. ठीक है. Then D block they form large number of colored compounds. Why? Because there is transition of electrons from D. It is actually you have studied and you are going to study in coordination compounds chapter. So there D is considered as degenerate orbital
right? And it has got two parts. One is T2G and second is EG. So what happens in DD transition, the electrons from T2G, they transmit or they move to EG, right? And because of this movement और because of this transition there is colored complex formation. ये हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं coordination compounds में, right? Next आता है D block elements are very good in making complex compound. The reason they have got vacant d orbital, इनका small size है, charge ज़्यादा है, vacant sites है, so it goes for complex formation. Then again D block elements are very good catalyst. Why they have got good catalytic property? Again, they have got vacant d orbital, they are small, highly charged, and the another very important point is they have got variable oxidation state. ओके देन लास्ट प्रॉपर्टी जो है, जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मोस्टली देते हैं, दे एक्चुअली गिव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. व्हाई दे गिव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और शो? द रीजन इज दे हैव गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आप सोच लीजिए D1 से लेके D5 तक अनपेयर्ड, राइट? बिकॉज 1 2 3 4 5, तो D5 तक. देन इवन 6 में भी ये अनपेयर्ड है. ओके D7 में भी ये अनपेयर्ड 3 है. D8 में भी अनपेयर्ड है, right? So because of this the complexes and D block elements are paramagnetic in behavior. Okay, now generally question जो बहुत अक्सर या इम्पॉर्टेंटली आस्क होता है, दैट इज वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. तो बच्चों यहीं पे इसका अभी याद कर लो, फिर हम आगे भी करेंगे. ये पॉइंट्स हैं. इस बार भी बोर्ड जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का पेपर हुआ है 2024 में, उसमें भी यही क्वेश्चन आया है. सो द आंसर इज because it has got partially filled d orbital, variable oxidation states है, it forms complex compound, it has got large surface area, therefore it is used as catalyst. Okay, then एक क्या आता है कि why d block element they form large number of alloys. Why? So the reason is the atoms of alloys, they are almost similar in size. ओके तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो जब ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अलॉय, तो क्या होता है, इनका सेम ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, इसलिए ये एक दूसरे को म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल लेटिस में इजीली फिट हो जाते हैं, इसलिए दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड. Now let's understand interstitial compounds क्या होते हैं. तो let's understand, suppose हमने क्या लिया, स्टील ले लिया या हमने चलिए आयरन ले लिया, ठीक है? तो ये बड़े बड़े आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? इन बिटवीन ये गैप्स हैं. ओके तो इसमें क्या है, इम्प्योरिटी कार्बन की फिट हो जाएगी. ओके या इसमें फिट हो गया नाइट्रोजन या फिट हो गया हाइड्रोजन. So such compounds where carbon, nitrogen, oxygen or hydrogen, they come in between and occupy the in between vacant spaces. Such compounds are known as interstitial compounds. So transition metals में interstitial compounds ज़्यादा मिलते हैं. Reason, जितने भी interstitial voids हैं वो इन छोटे छोटे एलिमेंट से कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज इनका साइज और इंटरस्टिशियल वॉइड का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है. इज दिस क्लियर? अब हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. सबसे पहले क्या है, दे हैव गॉट लाइक सिंस दे आर मेटल्स, सो दे हैव गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइल है, मेलेबल है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, लस्टर है, वेरी हार्ड. पर आपको जिंक, कैडमियम और मर्करी मिलेंगे. जो मर्करी लिक्विड है, जिंक कैडमियम सॉफ्ट है. ओके देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके हाई होते हैं. वाई दे हैव गॉट, यस इस पर क्वेश्चन आता है, वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. द रीजन इज देयर इज इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग. बिकॉज ऑफ दिस इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है.
right? Next we talk about why zinc, cadmium, mercury and manganese, they have got more metallic structures. ये भी क्वेश्चन आता है. They have got more than one metallic typical structures, right, at room temperature. So the reason is they have got large number of valence electrons, right? And because of this results in resultant bonding. Okay, so there is stronger resultant bonding, and because of this you will find zinc, cadmium, mercury, because इनका क्या है, D10 है और हमारा क्या है, NS2 कन्फिगरेशन है. मैंगनीज में क्या है, D5 है और NS2 है. ओके, दैट इज 3D5 4S2. सो बिकॉज ऑफ दिस इनका कंप्लीट शेल है, राइट, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल, इसलिए इनके मोर देन वन मेटालिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं. Okay, next we talk about enthalpy of atomization. तो ये अगर हम let's see the graph, अगर हम atomic numbers को plot करें from 21 to 30, right, first series ले लेते हैं, say 3D series like this. तो ये first वाली है हमारी 3D series है. Then we go for 4D and 5D. तो ये जो हमारी series है, you will find that the enthalpy of atomization पहले क्या होती है, it increases, see it increases, then there is a dip because D5 आ गया, then again it increases and then again decreases because it becomes D10. Okay, so they have got very high enthalpy of atomization, and the reason is there is metallic bonding, right? And अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3D 4D then 5D, you will find 5D has got a higher enthalpy of atomization. The reason is as we move from 3D to 4D to 5D, what is happening, the nuclear charge is increasing and the charge is so strong that the enthalpy of atomization increase from 3D to 4D to 5D. Now, okay, now another question can be asked, why transition elements exhibit high? So why do they exhibit high? The most important feature is they have got unpaired electrons. Okay, then they have got strong interatomic interactions. Because of this, there is a strong bonding, and because of strong bonding, there is high enthalpy of atomization. इसके बाद next property हम ले लेते हैं ionization enthalpy की. Now ionization enthalpy when we move from scandium, right, to titanium, okay, so or vanadium, chromium, manganese, right? So as we move like this, so this enthalpy increases. Okay, now if we compare 3D and 4S, like 3D and 4S is there, so you will find that 3D electrons, they shield 4S electrons, right? But this is less significant. Whereas if you talk about 4D with 5S and you talk about 5D with 6S, राइट, इनके बीच में क्या आ जाता है, इनके बीच में एक आ जाता है 4F और 5D 6S के बीच में आ जाता है 5F. बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, यहाँ पे शील्डिंग इज मोर. ओके, सो इट अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन. अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे. इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. सो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर क्वेश्चन आता है विच एलिमेंट हैज गॉट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका आंसर होना चाहिए मैंगनीज, बिकॉज फ्रॉम +2 to +7 all the oxidation states are visible, right, it exhibit. Then we talk about scandium and zinc. Scandium में क्या है, it is 3D1 4S2. okay, और zinc में क्या है, 3D10 4S2. so because of this ये completely filled है, तो यहाँ पे oxidation state नहीं आती है, राइट. और ये +3 आ जाता है, तो अगर +3 आ जाएगा तो स्कैंडियम +3 में दिस विल बिकम 3D0. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p6. ओके, तो ये कन्फिग्रेशन हो जाता है आर्गन का. सो देयरफॉर ये भी इन नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, इसलिए दिस ऑल्सो बिकम स्टेबल. सो स्कैंडियम एंड जिंक दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इस पर भी बच्चों याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर.
ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो यू विल फाइंड एज वी मूव फ्रॉम टाइटेनियम, so what happens, there is gradual increase, then there is a small dip, again increase, small dip, again increase. Okay, and it crosses zero. तो वैल्यू क्या है हमारी, टाइटेनियम में 1.5 है, इट इज माइनस. कॉपर में हो गई 0.34 प्लस, और जिंक पे आ गई -0.76 वोल्ट. ओके, तो ये कंपैरिजन आ गया, राइट. सो द रीजन इज अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से है. इसके बाद देयर इज अ क्वेश्चन, सपोज क्रोमियम, क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट है और मैंगनीज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाई. ओके, सो द रीज़न इज क्रोमियम रिड्यूसिंग क्यों है, कि क्रोमियम को अगर आप Cr3+ से सी क्रोमियम 2+ बनाते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, D4 से D3 आ रहा है. ओके, राइट. वेर एज मैंगनीज अगर आप लेते हैं तो मैंगनीज में +3 टू Mn5 बनेगा, Mn+2 बनेगा, एंड यहाँ पे क्या है, इट विल बी हैविंग कन्फिग्रेशन D5. नो D5 जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है. तो इसके बाद क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग, वेर एज ये रिड्यूसिंग इसलिए कर देगा, राइट, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज लेस देन D5, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा और ये गिव आउट कर देगा इन ऑर्डर टू मेक इट स्टेबल. ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सपोज यहाँ दिया हुआ है क्रोमियम रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम क्रोमियम +3 to +2 इज -0.41, एंड आयरन का दिया है Fe3+ से Fe2+, इट इज 0.77. Now the question is asked, which one is stronger reducing agent and why? So which one is stronger? If you see, it is 0.41. So that means it has got a lower reduction potential. The one which has got lower reduction potential can be reduced. You see, so it behaves like a stronger reducing agent rather iron. Okay, next another very interesting question is, अगर आप ऑक्साइड्स ले लेते हैं तो वेनेडियम ऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और मैंगनेट, इनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इंक्रीज हो रही है. ओके, सो व्हाई, बिकॉज द रीजन इज द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड. ओके, सो अगर इसका रिड्यूस करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल. डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा. सो वेनेडियम ये बनेगा, इसका भी रिड्यूस प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. इसलिए बिकॉज ऑफ दिस दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग power, right. Last we talk about atomic radius. So if you see the graph, अगर radius ले लें और 3D elements ले लें, so what is happening, जो radius है as we move left to right it starts decreasing. Why it is decreasing? The reason is there is increase in the nuclear charge by 1 unit. Every time you add an electron here, the atomic number increases, the nuclear charge is increased by 1 unit. ओके, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप देखते हैं कि 3D और 4D के बीच में गैप्स आता है, 4D और 5D में और बहुत कम डिफरेंस है. तो द रीज़न इज 3D इज 3D और 4S में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, एंड 5D और 4D में कम है बिकॉज देर इज इन बिटवीन F ऑर्बिटल. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इनका ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है रेडियस वैल्यूज, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, एंड देयरफॉर दे फॉर्म गुड अलॉयज बिकॉज इनके साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द आयंस ऑफ सेम चार्ज in a given series. They show progressive decrease, right, with increase in atomic number. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका बोर्ड्स में आया है क्वेश्चन 2024 में. सो द आंसर इज द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू d orbital, right. Every time when electron enters there is increase in nuclear charge by 1 unit, right. With the result what happens, the shielding effect takes place, but the shielding effect is not very effective,
right? Because there is higher electrostatic force of attraction between the nuclear charge and the valence shell. Okay, because of this what happens, there is attraction and the atomic radii decreases. तो आप इसको अच्छे से explain कर दीजिएगा. फिर अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे. मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम देखते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू and it is measured in terms of Bohr magneton. The formula is under root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. तो आप ये वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की निकाल सकते हैं. Okay, suppose I say that there is an element which has got 4 D4. So D4 means 1, 2, 3, 4. These are 4. How many electrons are unpaired? 4. So we place here 4. This is 4 plus 2, right? So this is how much? 4 plus 2 is 6. And this is how much? 4. 6 4s are 24. So square root. Okay. Suppose I say D8. Now 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. Right? D8. 6, 7, 8. How many unpaired electrons? 2. So it will be square root 2 into 2 plus 2. So this is 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 square root. Okay, so this is how we calculate the magnetic moment. बहुत easy और simple interesting इसके examples हैं, right? Calculations हैं. अब हम आ जाते हैं बहुत interesting 4F series and 5F series. Okay, now 4F series में हमारे पास क्या है? 4F series is known as lanthanide series and 5F series is known as actinide series. Okay, now 4F series is known as lanthanide series because these 14 elements have been placed after lanthanum. तो अगर हम देखेंगे ये lanthanum है, atomic number 57 of D. This is 3D, 4D and 5D. Right, so 5D में lanthanum is there. After lanthanum, these are the 14 elements. Okay, so because of these elements, these 14 elements, right, they have been named as lanthanoids. Okay, then we talk about next series, that is actinide series. In actinide series, these elements, 14 elements, are after actinium. Okay, so they have been named as actinide series, right? अब हम इसको पढ़ लेते हैं. इसका सबसे पहले ले लेते हैं जनरल फॉर्मूला. तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारा? इट विल बी, नाउ अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा? हम फिल कर रहे हैं 2 में 4F या 5F, दैट मीन्स n-2. okay, how much? F. Now this is from 1 to 14 electron. D will be, now D कौन सा होगा हमारा? इनर. तो हम इसको करेंगे n-1 D, right? It can be 0 or 1. Then we have got ns, right? 2. So this is the general electronic configuration for lanthanide and actinide. lanthanide होगा तो ये 4F हो जाएगा और actinide होगा तो ये 5F हो जाएगा. Okay, these are the members, right? And generally when we fill the electrons, जब हम left to right इनके electrons fill करते हैं, so what do we see? That there is decrease in atomic radii. So why there is decrease in atomic radii? The reason is because of strong nuclear charge and force, electrostatic force of attraction. So because of this there is contraction. Okay, so we call this as lanthanide contraction. और उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? 4D एंड 5D सीरीज जो होगी, इनके जो रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल. ओके, नाउ अगर हम इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर हम लैंथेनाइड का लिखते हैं तो हम लिखेंगे xenon 4F14 5D 021 and 6s2. ये हो जाएगा हमारा लैंथेनाइड which starts from cerium to lutetium, atomic number 58 to
71, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन होगी दैट इज +3, एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्टेनाइड्स में। एक्टेनाइड्स में द जनरल कन्फिगरेशन जो आ जाएगा वो होगा रेडॉन 5 है, 1 to 14, 60, 0 to 1 and 6s2. Most common oxidation state will be +3. Again there will be decrease in the size when we move left to right. Reason again वही poor shielding effects है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज एक्टेनाइड्स में क्या है, सारे एलिमेंट्स जो है रेडियो एक्टिव है ना। रेडियो एक्टिव तो है लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि यूरेनियम तक तो यहाँ पे बात करते हैं। सो यू विल फाइंड दीज आर रेडियो एक्टिव एंड दे आर नेचुरल। ओके, रेस्ट आफ्टर यूरेनियम दैट इज नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिकन है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, लॉरेंसियम है, नोबिलियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे, दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। सो वी ऑल्सो कॉल, है तो रेडियो एक्टिव लेकिन कैसे है, मैन मेड एलिमेंट्स है। ओके, अब इनका वैल्यू क्या है, वाई वी स्टडी, इनको क्यों पढ़ते हैं। तो अगर हम लेंथेनॉइड्स पढ़ते हैं तो लेंथेनॉइड्स की बहुत स्पेशलिटीज़ हैं। एक तो लेंथेनॉइड्स जनरली क्या बनाते हैं, मिश मेटल बनाते हैं, विच इज़ एक्चुअली 95% ऑफ लेंथेनाइड, 5% ऑफ आयरन। उसमें सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम की छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एंड दे आर यूज इन मेकिंग बुलेट्स, शेल्स, लाइटर फ्लिंट शेल्स, इन सब में ये यूज़ होता है। ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड ले लेते हैं, वो हमारे कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करते हैं, स्पेशली जो हम पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फिर एक फिनोमेना होता है फॉस्फोरेसेंस। आपने दो फिनोमेना पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है फ्लोरेसेंस। उसमें क्या होता है कि जब आपकी लाइट इलेक्ट्रॉन पे फॉल करती है तो इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है टू अ हायर लेवल एंड देन इट कम्स डाउन रिलीजिंग एनर्जी, राइट। नाउ इसकी वजह से क्या है, फ्लोरेसेंस होता है, चमकता है। बट इन फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, इट स्टेज फॉर सम सेकेंड्स। तो फॉस्फोरेसेंस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इट गोज अप बट इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, जब तक उसको एनर्जी मिल रही है वो ऊपर रहता है। एंड आफ्टर व्हेन एनर्जी इज नॉट गिवन, तब ये क्या करता है, इट स्टेज देयर, व्हेन इट सीज की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो रही है देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, धीरे धीरे वापस आता है। तो ये आपने देखा होगा जनरली टीवी स्क्रीन के साथ। सो दिस इज द यूज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स, राइट। बाकी एक्टेनॉइड्स तो रेडियो एक्टिव है तो उनके अलग से रेडियो एक्टिव यूजेस हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं टू मेन कंपाउंड्स। हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक है पोटाशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इनका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं मैंगनेट, मैंगनेट का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहीड्रल है, इट इज़ ग्रीन इन कलर, राइट। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है विच हैज़ गॉट टू डबल बॉन्ड्स, मैंगनीज बीच में है, और it is MnO4 with 2 minus charge. So you will find 2 minus charge, right, and ये 4 oxygens है। When we talk about permanganate, that is MnO4 with 1 negative charge, then again the structure is tetrahedral। फिर से structure tetrahedral है, लेकिन अब क्या है, कलर आपका हो गया पर्पल। द रीज़न वाई देर इज पर्पल कलर, बिकॉज अब आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं विद ऑक्सीजन। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है। और मैंगनेट में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, पर मैंगनेट में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। Now next we talk about the dichromate. So when we talk about dichromate, dichromate में क्या है, it is Cr2O7 with 2 unit negative charge. इसका structure में chromium at 2 ends they are tied with oxygen and 3 आपके oxygen molecules are tied to each chromium with a single bond. Now in this case charge क्या है, there are 2 unit negative charge dichromate में। और अगर हम क्रोमेट लेते हैं CrO4 तो फिर से टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, राइट। कार्बन विद क्रोमियम विद 4 ऑक्सीजन, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नाउ क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो, और डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज। ओके, नाउ लेट्स टेक अप ये कैसे बनाते हैं। सो टू प्रिपेयर
अगर हम देखें तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम फ्यूज करते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वी ऑक्सीडाइज इट विद लार्ज अमाउंट और एक्सेस ऑफ एयर or with potassium nitrate. With the result we get what? We get manganate, right? Green color. And this manganate is further electrolytically oxidized in alkaline solution and we get purple color per manganate. Okay, तो ये तो हो गया हमारा preparation of potassium permanganate. Okay, then next we talk about dichromate. Dichromate को भी हम कैसे बनाते हैं? Dichromate में हम लेते हैं क्रोमाइट और that is iron chromate. इसको हम फ्यूज करते हैं with sodium chromate और potassium chromate. We prefer sodium chromate. सोडियम क्रोमेट से बनाते हैं. सो व्हाट हैपेंस, आयरन क्रोमेट कंबाइंस विद सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्म्स सोडियम क्रोमेट. येलो कलर का आता है. इस सोडियम क्रोमेट को हम फिल्टर करते हैं और एसिडिफाई कर देते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड. सो क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर. राइट नाउ सोडियम इज एक्चुअली सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल, राइट, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं और फिर उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जनरली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रीजन में व्हाई. So you should know the answer. The answer is the sodium dichromate is more soluble and is easily made because of its solubility. इसके बाद हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, now थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं. although I have covered. Okay, so the question can be asked why transition elements they act as good कैटलिस्ट. तो वही है, दे आर पार्शली फिल्ड, डी ऑर्बिटल है, देन लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, देन देर इज लार्ज सरफेस एरिया. सो बिकॉज ऑफ दिस दे बिहेव लाइक गुड catalyst. Then question is asked why scandium, right, does not show variable oxidation state, because most common oxidation state is +3. so scandium जब आपका +3 हो जाता है, that means it loses 2 s electrons and 1d electrons, and इसका configuration कैसा हो जाता है, argon के जैसा, that is a noble gas. Hence it does not further react and it becomes stable, and because of this it doesn't show variable oxidation state, क्योंकि इसके बाद वो electrons नहीं निकालता, reason अब वो stable हो गया. फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन. ट्रांजिशन वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, इनर ट्रांजिशन वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन f ऑर्बिटल. इसका d का हमारा कन्फिग्रेशन होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2, where it is n-2 f1 to 14, right, and then n-1 d 0 or 1 and it is ns2. so ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन. फिर क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक. सो दे आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. okay, फिर there is another question why length based on lengthenite contraction. interesting है, based on lengthenite contraction, if you see lutetium oxide and you see lanthanum oxide, तो दोनों में कौन सा कोवेलेंट, कौन सा बॉन्ड होगा. so the nature of bonding is covalent. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, दोनों में से कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट होगा. सो इफ वी टॉक अबाउट लेंथेनम, तो लेंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ जा रहे हैं. सो व्हेन वी आर मूविंग लेंथेनम टू ल्यूटिशियम, व्हाट इज हैपनिंग, द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, right, and charge is increasing. so because of this covalent character will increase. hence if you compare, so lutetium will have more covalent character than lanthanum oxide. okay, then if we talk about the stability of oxo salts, lanthanum के and lutetium के. so when we move lanthanum to lutetium, again the cation size is reducing, right, and according to Fajon's rule, what is happening, the polarizing power of cation increases. with the result it breaks the cloud of oxide, right, it forms the bond with oxygen, and this bond formation is decreased because of polarizing power,
and therefore the stability decreases. Okay, so if we talk about lanthanum oxide and we talk about say oxo salts of lutetium, so lutetium salts will be less stable than lanthanum oxide salts. Okay, again एक question आ जाता है, if we take chromium plus 3 ions and ammonium plus 3 ionic state, which one will be stronger oxidizing agent and why? So manganese will have D5 oxidation state, so this is more strong, stable, half filled, therefore it will behave like a stronger oxidizing agent than chromium. Okay, then question आ जाएगा, ये भी question है, why zinc is not considered d block? Because it has got completely filled electrons, right, d orbital ground state में. फिर ये फिर से रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है इट इंक्रीजेस, राइट, इफ वी टॉक अबाउट 3D सीरीज तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक इंक्रीज करता है एंड आफ्टर दिस पेयरिंग स्टार्ट्स तो इट डिक्रीजेस, राइट, और जिंक पे जाके खत्म हो जाता है. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाई एक्टिनाइड्स एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? सो द रीज़न इज कि अगर हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो 4f 60 7s इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, राइट. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है एंड इसलिए इनके पास लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. इट बिकम्स इजी फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप, राइट, फ्रॉम 4f टू 60 टू 7s ईजी हो जाता है. बट अगर लेंथेनाइट देखें तो लेंथेनाइट में 4f और 5d में डिफरेंस लार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ा सा कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, राइट. देन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है. तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या होगा हमारा? पोटेशियम, राइट, मैंगनेट बनेगा, राइट. एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एसिडिक सॉल्यूशन सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट. ये हमने पहले भी कवर किया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके इक्वेशंस पे बेस्ड है. तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. आपको ये क्या करना है, आई वुड सजेस्ट आप क्या कर लीजिए, एक पेपर पे सारी इक्वेशंस लिख लीजिए और खाली बैठ के सब इक्वेशन दोबारा दोबारा लिखते रहिए. एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऐसी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड प्लीज़ सी दैट आप बैलेंस्ड एंड कंप्लीट रिएक्शन लिखें in order to fetch full marks. Okay, all the best. Thank you.